Okay, we are live. Let me share the link. Okay, ji. Assalamu alaikum. My name is Najam, and you are watching Games of Law, a channel for legal updates and legal education. और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस वाइजा रफीक. शी इज़ एन एडवोकेट हाई कोर्ट. She is a founder at Waja Rafiq and Legal Consultants. She has also been Additional Secretary General of the Gender Equality and Diversity Committee of Lahore High Court Bar Association, and she's also the host of Just One TV platform, and as well as she's also an example for many young girls in this career of law. So first of all, we welcome her, Ms. Waisa Rafiq. Assalamu alaikum. How are you doing, ma'am? Assalamu alaikum. Thank you very much, Najam, for such a generous introduction. And I'm doing great. I hope you're doing fine as well. And I hope that everything is going great at your end. Yes, ma'am. Thank you very much. It is great. So, as we have our topic today, that how to choose a right LLM, and then how to achieve a proper scholarship for that. And I guess you are the best guest for that and a best speaker on that, because you recently hold the Chevening Scholarship 2020, and right now you are at the University at Sussex with doing your LLM in criminology. So first, I have my first question is why do you think that an LLM is important, and how it is make an impact on as a lawyer? Thank you very much, Najam. LLM is important. इसके मुख्तलिफ रीजन हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर सिचुएशन में हर शख्स के लिए LLM इम्पोर्टेंट भी हो. आई एम सॉरी, कैन आई यूज both languages or am I supposed to be in English primarily? No, it is bilingual. You can. It's more likely that it is Urdu, because it is for recent graduate lawyers. So that if you could do that, that would be also great. ठीक है, perfect. So LLM जो है उसकी अहमियत हर सिचुएशन में और हर शख्स के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम पर, बाय शख्स आई मीन हर वकील के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि इतना ही इम्पोर्टेंट हो. तो ये तो एक सबसे पहले एक जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है. Having said that, I think it is important. And it is always good to have a higher education and a degree of higher level. But again, that depends on your circumstances and the trajectory of your career that you want to pursue as a legal practitioner. If, let's suppose, you want to pursue a career in academia and you plan to practice, you plan to teach law, तो उसके लिए फिर LLM is important and it is mandatory. और LLM के बाद फिर it is important that you pursue your PhD as well and then postdoctorate, and because वो एक ऐसा channel है कि जो आपको academia की तरफ लेके जाता है. As opposed to that, if you want to practice law as a legal practitioner and do litigation, litigation के लिए LLM या कोई और जो degree है, I mean, it definitely adds to your depth. It definitely adds to your understanding of things. It definitely adds to your perspective and your overall understanding of situations and the ability to analyze things critically. उस हद तक तो ये बहुत फायदा आपको देती है, but it is not mandatory if you want to litigate and if you want to do practice. पोस्ट वाली जो जहाँ से मैं आई हूँ और जहाँ पे मैं प्लान करती हूँ मेरा आगे भी करियर वही है. ये सबसे पहले तो आपको सोचना होता है और आपको खुद डिटरमिन करना होता है कि LLM आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आगे फर्दर आपके लिए हायर एजुकेशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी नहीं है. लेकिन राइट LLM चूज करना, आई मीन बाय दिस आई डोंट मीन टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम परसुइंग LLM बिकॉज इट्स वंडरफुल टू हैव एन एक्सपोजर. इट इज वंडरफुल टू हैव दैट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स और वो बहुत आपके लिए अच्छा रहता है. लेकिन प्रैक्टिस आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि उसके लिए तो आपका लाइसेंस होना चाहिए. So that's a different ball game altogether. Right LLM कैसे चूज करना है, ये again that's
very much on the person who is there to make decision for himself or herself. आपके इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, आपके जो प्रीवियस काम है उस पर डिपेंड करता है। और बहुत दफा ऐसा होता है कि जो जिस एरिया में ज्यादा काम पहले किया होता है, जनरली लोग ये समझते हैं कि हमें उसी में मास्टर करना चाहिए, लेकिन इन माय केस इट वाज डिफरेंट इन द सेंस कि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस सिविल सर्विस लॉज में और कॉर्पोरेट लॉ में और सिविल साइड पे ज्यादा की थी, क्रिमिनल भी प्रैक्टिस मैंने की थी, लेकिन उसके मुकाबले में मेरी दूसरी जो साइड ऑफ प्रैक्टिस है वो ज्यादा थी। लेकिन मैंने मास्टर्स जो है वो क्रिमिनल लॉ में और क्रिमिनल जस्टिस में करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है और इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। सो दैट वेरी मच डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू परसू योर करियर इन, और आप आगे किस तरह से लिटिगेशन और काम करना चाहते हैं। तो वैरायटी बहुत है, और इंग्लैंड में खास तौर पे इट इज अमेजिंग इन द सेंस कि आपके पास बहुत से स्पेसिफिक लॉज और स्पेसिफिक एरियाज में भी मास्टर डिग्रीज जो हैं उनके ऑप्शन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस लॉज में, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम लॉज में। अब ये वो चीजें हैं जो इतनी स्पेसिफिक हैं और इतनी नैरो हैं कि आपको पाकिस्तान में ये डिग्रीज नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, हाँ प्रैक्टिस लोग करते हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर building their niche in petroleum laws and oil and gas and drug laws, health laws, इस तरह की चीजों पे काम करते हैं। लेकिन दे लर्न बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ एन एकेडमिक डिग्री, बिकॉज वो वैरायटी और वो ऑप्शंस वहां पे नहीं है। लेकिन it feels really good and it feels amazing to have all this variety of courses, और ये सारी आपके पास एक इतनी ऑप्शंस होती हैं। तो उसमें आई वुड सजेस्ट दैट पीपल डू देयर ओन रिसर्च, look up to universities की websites and try to sort of unveil के उनके अपने interests क्या हैं, उनकी अपनी जो लाइफ है वो आगे किस तरह से वो प्लान करते हैं, और उनको किस साइड पे आगे अपना मास्टर्स जो है वो परसू करना है। तो दिस इज आई थिंक हाउ यू कैन प्रोबेबली रीच अप टू समथिंग क्लियर। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मेरा ख्याल है कि टाइम फ्रेम है। तो आपको क्या ख्याल है कि किस टाइम फ्रेम, मतलब कि एक रिसेंट ग्रेजुएट है, क्या उसको फौरन ही अपने एलएलएम के लिए चले जाना चाहिए ताकि वो एक दफा जाके प्रैक्टिस शुरू कर ले, या थोड़ी देर कुछ देर प्रैक्टिस करके चीज़ों को एक्सप्लोर करे और अपने इंटरेस्ट देख के, मतलब जिस तरह आपने आई गेस काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लेके उसके बाद फिर इसको एलएलएम की तरफ परस्यू किया। तो आपके ख्याल में क्या ये किस तरह आपने इसको टाइम फ्रेम किया? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें ये है, सॉरी, इसमें ये है कि आपको ये देखना होता है। अच्छा, दोनों साइड्स पे आर्गुमेंट्स तो हैं। मैं डेफिनेटली वही कहूंगी जो मैंने अपने लिए चूज किया, क्योंकि मैंने अपने लिए वो इसीलिए चूज किया क्योंकि वो मुझे सबसे अच्छा लगा और बेहतर लगा। लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि अगर आपको वकालत करनी है और आप मुझे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक साइड ऑफ द पिक्चर ये है कि आप फौरन से अपना मास्टर्स कर लें, और मास्टर्स करने के बाद आप एक ही दफा आए और आके आप अपनी वकालत करें और अपनी लिटिगेशन को परसू करें, ताकि आपको बार बार छोड़ के ना जाना पड़े। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए लीगल प्रैक्टिशनर कि आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ के जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो फिर यू हैव टू स्ट्रगल ऑल द वे थ्रू एक दफा फिर से, जो कि एक चैलेंजिंग चीज है। लेकिन दूसरा जो एक पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है, जो कि मुझे भी अपील किया और मैंने खुद भी वो किया, वो ये कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आई थिंक 2 years of gap between more than 2 years, around 3 years of gap after my undergrad law degree, and pursuing my masters in law. अब उसमें जो मेरी कुछ considerations थी वो ये थी that I wanted to have that practical exposure, although I was practicing पहले से ही. By the time I graduated, I had 2 years of work experience already working in the law firm. तो काम तो मैंने पहले ही शुरू कर दिया था, so I had that practical experience भी. लेकिन the exposure that you have once you have your own license and you appear in the courts and you get to know the dynamics of court proceedings, तो फिर आपको समझ आता है कि चीजें कैसे होती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब तक मुझे ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में चीजें कैसे होती हैं, तब तक मैं वहां जाके ये कंपेयर नहीं कर सकूंगी कि
यहाँ पे चीज़ें किस तरह से हो रही हैं और पाकिस्तान में कैसे होती हैं, और उनका जो एक कंपैरेटिव व्यू है वो मुझे उतना अच्छे तरीके से शायद नहीं मिल सकेगा। तो इसीलिए मुझे ये बेहतर लगा कि मैं थोड़ा-सा गैप लूँ, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखूँ, और ये अंदाज़ा लगाऊँ कि लिटिगेशन का मतलब पाकिस्तान में क्या है, और उसके बाद आगे मुझे फर्दर जो है वो किस तरह से करना है और किस चीज़ में मास्टर्स करना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपनी अंडरग्रेड लॉ डिग्री के बाद फॉरेन मास्टर्स परस्यू करती, तो शायद मैं क्रिमिनल लॉ में, या क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस है मेरी डिग्री, तो मैं शायद इसमें ना करती। मैं कमर्शियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ या कोई किसी ऐसी चीज़ में करती जो कि ज़्यादा इन है शायद, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड। पर जब मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल साइड है उस पे काम करने की और उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ज़्यादा है, बिकॉज़ देयर इज़ टू मच सैचुरेशन। वेल आई थिंक दैट, आई मीन पीपल मे डिसएग्री विद दिस, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से अपनी चीज़ों को देखा और फ्रेम किया। सो दैट्स हाउ इट वर्कड आउट। Well, it is great. We hope a great future to you as well. तो जिस तरह के आप जो हैं आपने अचीवनिंग स्कॉलरशिप को अचीव किया इन 2020, so could you please kindly introduce the scholarship and how did you achieve that? Could you share your story please kindly? Oh, definitely. It's not as interesting a story, by the way, but I would really love to talk about it. So, yeah, I mean, I applied for Shivning. Um, my one of my very good friends was applying, तो मैंने कहा कि people apply, and जिन जो कुछ लोगों को जिनको मैं जानती थी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका नहीं हो सका, फिर उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में किया, उनका नहीं हो सका। तो आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि चलें इस दफ़ा आई शुड गिव इट अ ट्राई, बिकॉज़ आई एम नॉट आई हैड नॉट थॉट ऑफ गेटिंग इट दिस ईयर। तो मैंने कहा चलो मैं इस दफ़ा देखती हूँ एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है और मैं ट्राई करती हूँ, और लेट्स गिव इट अ शॉट। और फिर ये है कि चलो अगले साल तक हो जाएगा, इस साल कुछ समझ आ जाएगा कि क्या प्रोसीजर होता है। तो अप्लाई कर दिया, एंड व्हेन आई वाज शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ माय एसेज, तो फिर आई got to realize कि अच्छा, this is a serious business now and I really have to work on my interview and be serious about it. So that's how it happened. But application का जो process था, जिसपे जो I think important है हमारे viewers के लिए भी, वो ये था कि एप्लीकेशन जो है वो 4 एसेज पर बेस करती है। मैं उसके बारे में बात भी करती हूँ। अभी भी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था कि एसेज किस बारे में होते हैं और किस तरह से आपने उनको परस्यू करना होता है। सो आई विल बी शेयरिंग मोर डिटेल्स ऑन दैट चैनल एज़ वेल। बट द एप्लीकेशन इज़ बेस्ड ऑन 4 एसेज, जिसमें हर एसे 500 वर्ड्स का होता है। ये मैं बहुत जगह पे पहले बात कर चुकी हूँ। एक एसे जो है वो लीडरशिप स्किल्स पे बेस्ड होता है, जिस ऐसे में आपको ये बताना होता है इवैल्यूएशन कमेटी को कि मेरे अंदर ये लीडरशिप स्किल्स हैं, और शिवनी को क्योंकि लीडर्स चाहिए, तो आपने डेमोन्स्ट्रेट करना होता है अपनी पुराने काम से, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, अपने प्रीवियस जो आपका सोशल वर्क है या जो भी आपने कोई एक्टिविज्म या काम किया है उस पे, या जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें रही हैं, उसमें आपको अपनी लीडरशिप की एग्जांपल्स निकाल के कोट करनी होती हैं कि फलां साल में फलां टाइम पे फलां पॉइंट पे मैंने ये लीडरशिप स्किल्स दिखाई थी और ये लीडरशिप रोल प्ले किया था। 500 वर्ड्स में यू हैव टू रियली इलैबोरेट कि आई एम द लीडर दैट यू आर लुकिंग फॉर, लिहाजा टेक मी ऑन बोर्ड। इसी तरह से दूसरा ऐसे जो होता है दैट इज ऑन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में वो ये रिक्वायर करते हैं कि आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, लोगों से कनेक्ट करने की स्किल्स, आपका जो सर्कल है आप वो कैसे बिल्ड करते हैं, और उस सर्कल को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं पर्पसफुल चीज़ों में। मिसाल के तौर पे एक तो ये है कि आपका हल्का अहबाब बहुत वसी है, जो कि पाकिस्तान में मोस्टली होता है लोगों का, लेकिन उस हल्का अहबाब का मकसद क्या है ये हमें नहीं पता होता, या हम उससे क्या काम ले सकते हैं और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वुड नो अ लॉट ऑफ लॉयर्स, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लॉयर्स जो शायद
लिटरेचर पे काम करते हैं और वो उर्दू लिटरेचर पे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रखते हैं और आप उनके लिए कोई छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं या कुछ करते हैं, तो ये वो नेटवर्किंग है जिससे आप कोई ना कोई पर्पस अचीव कर रहे हैं और आप उससे माशरे में तब्दीली लेके आ रहे हैं। तो शिवनिंग को ये चाहिए होता है कि आप उनको अपने नेटवर्किंग ऐसे में ये बताने के कि मेरी जो नेटवर्किंग स्किल्स हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करने की जो स्किल्स हैं, वो स्ट्रांग हैं और मैं उन स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी में चेंज लेके आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। लिहाजा टेक मी ऑन बोर्ड एंड आई एम द फिट कैंडिडेट। ये भी आपको 500 अल्फाज की लिमिट में रह के उसको बताना होता है। तीसरा जो आपका ऐसे होता है वो होता है स्टडी इन द यूके ऐसे। स्टडी इन द यूके ऐसे भी 500 वर्ड्स का ऐसे है इन विच यू हैव टू टेल देम व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूके एंड नॉट यूएस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री। या दुनिया में और हजारों स्कॉलरशिप्स हैं और दुनिया में और हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो सब चीजें छोड़ के आपको खास तौर पे सिविल और यूके में ही क्यों डिग्री करनी है। उसके लिए यू शुड हैव योर स्ट्रॉन्ग रीजंस। अब वो आपके अपने रीजन होते हैं कि आपने क्यों करनी है, आपको क्यों लगता है कि ये डिग्री आपके लिए बेस्ट है, आपको क्यों लगता है कि ये यूनिवर्सिटी जो आपने चूज की है जिसमें आप जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपकी अपनी चॉइस होती है। सेवनिंग आपको नहीं पुश करता कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाएं, इस यूनिवर्सिटी में जाएं। आपने खुद बताना होता है उनको कि आपने क्यों वो चूज की है और आपने क्यों उसमें जाना है। सो ये तमाम जो रीजंस हैं यू हैव टू sort of jot down in your study essay and tell them this is the reason why I want to go to UK and I want to pursue my masters in the UK and this is for any master's degree, this is not for masters in law। ये भी मैं साथ साथ बताती चलूँ, कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त वकालत के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो अब वी विल बी डिस्कसिंग LLM पर्टिकुलरली। सो चौथा जो ऐसे होता है दैट इज अबाउट योर करियर गोल्स। करियर गोल्स में आपको ये बताना होता है अगेन इन द सेम 500 वर्ड्स कि वन, let's suppose you're given this opportunity to pursue your masters in law through शिवनिंग स्कॉलरशिप और आप चले गए मास्टर्स पे। वापस आने के बाद आप क्या करेंगे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वापस आने के बाद आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपने आते ही फौरन इमीडिएटली क्या सोचा हुआ है अपने लिए, इन द लॉन्गर रन आपने क्या सोचा हुआ है। और ये डिग्री अगर आपको एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर इंग्लैंड में करवाने के लिए भेजा जाता है तो वापस आके आप हमें क्या देंगे या हमें आपके कराने से क्या फायदा होगा। सो उसमें अगेन यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एंड सी के शिवनिंग को क्या चाहिए, यूके गवर्नमेंट के गोल्स क्या हैं आपकी कंट्री में, वो किन चीजों में ज्यादा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन चीजों में वो ज्यादा काम करना चाहते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं और आपको देखना होता है कि क्या जो आप चाहते हैं और जो आपके मुल्क में जिन जिन कॉजेज पे काम करने की जरूरत है और जो यूके गवर्नमेंट जिन एरियाज में आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रही है, क्या ये 3-4 चीजें एक पेज पर हैं या नहीं। सो इस एक थॉरो एनालिसिस के बाद यू रियलाइज एंड नो कि अच्छा मुझे ये करना है अपनी लाइफ में अब, एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू गो अबाउट माई एप्लीकेशन। सो ये 4 एसेज होते हैं जो एप्लीकेशन में जरूरी होते हैं और एक मैंडेटरी पार्ट है रिटन एप्लीकेशन का। इनकी बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है और जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो फिर आप इंटरव्यू स्टेज पे जाते हैं जहाँ पे आपके इंटरव्यू का तरीका जो है वो फिर एक अलग उसमें डिटेल्स हैं। सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद योर एप्लीकेशन। Well, it was great hearing from you because ये स्कॉलरशिप की ये 4 एसेस जो हैं बाकायदा आपने बड़ा तफसील से इनको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें एड्रेस करनी है कि हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग बैक और किस तरह आप जो है अपने आप की प्रोफाइल शो करते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर जनरल भी बता दें कि एक लॉ स्टूडेंट्स जो हैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट है हमारा लाइव के अंदर क्वेश्चन भी उन्होंने किया लड़के ने कि उनको क्या क्या अटेन स्कॉलरशिप करने के लिए क्या क्या जनरली चीज़ें जो हैं ड्यूरिंग योर टेन्योर स्टूडेंट और प्रोफेशनल जो हैं साथ साथ करती रहनी चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती रहे।
अच्छा, ये कोई ऐसा सेट क्राइटेरिया नहीं है कि आप ये एक्टिविटीज करें या ये आप काम करें, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है या जो एक बुनियादी एक बेंचमार्क है, वो ये है कि आप सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए और चेंज लाने के लिए जिस कैपेसिटी में भी छोटी या बड़ी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, आप वो करते रहें। आप अगर प्रो बोनो लिटिगेशन करना चाहते हैं, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप वो करें, आप अपना एरिया डिटरमिन कर लें। फॉर एग्जांपल आपको फैमिली लॉ में इंटरेस्ट है और आप जो फैमिली लॉ के जो केसेस होते हैं ब्रोकन फैमिलीज के, जो नहीं फीस अफोर्ड कर सकते या जो लॉयर को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप उनको अगर चाहते हैं कि आप उनको फ्री जो है लीगल रिप्रेजेंटेशन दें, तो आप ये कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग कि जो आपने खुद डिटरमिन करनी है और आपने करना है, लेकिन पर्पस उसका ये होना चाहिए कि आप माशरे में कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और आप कोई किरदार अदा कर रहे हैं जिसके जरिए आप कोई ना कोई इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं सोसाइटी के, जिस हद तक आपका हो सकता है। एक ये बड़ी मिथ होती है कि शिवलिंग को बड़े कोई एस्टैब्लिश्ड लीडर्स चाहिए, या शिवलिंग स्कॉलरशिप इज फॉर पीपल जो बहुत हाई फाई प्रोफेशनल्स हैं और जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो उनको शिवलिंग स्कॉलरशिप मिलेगा बिकॉज दैट्स समथिंग कि जहाँ पे शिवलिंग के गोल्स अपने भी फुलफिल होते हैं। तो ये एक चीज है। वेल, ऐसे लोगों को भी मिलता है, हर एज ब्रैकेट के लोगों को मिलता है, लेकिन यंग लोगों को, जिनकी जिन्होंने आई मीन आई हैव कम अक्रॉस पीपल जो मेरे हमारे साथ हैं लोग, और वो मुख्तलिफ मुल्कों से सेलेक्ट हुए हैं और वो आए हैं। बहुत छोटी छोटी और बहुत बुनियादी सी एग्जांपल्स हैं लीडरशिप की, जिसमें आपने किसी एक शख्स की जिंदगी में भी कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर दिया और उसका कोई सोशल इशू या उसका लीगल इशू, या आपने उसका कोई एक प्रॉब्लम है जिसको हल कर दिया और उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया सोसाइटी में। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपको बहुत फायदा देती हैं, और हम सब ये कर रहे होते हैं लेकिन हम रियलाइज नहीं कर रहे होते, बिकॉज वी डोंट रियली गेट टू सॉर्ट ऑफ रियलाइज अगेन कि क्या हम लोग क्या कर रहे हैं दिन में। हम अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन भी तो नहीं करते ना, वी डोंट इवन नो आवरसेल्व्स। तो ये भी एक बड़ा मसला होता है। बट स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक तो एक्टिव रहें। लीगल एजुकेशन के पाकिस्तान में वैसे ही बहुत मसाइल हैं, तो ये कोई ऐसी डिग्री तो नहीं है कि जिस जो आपको फुल फ्लेज ही आपको अपना मतलब 24 घंटे हैं और उसमें से आप अगर रात का वक्त निकाल दें तो दिन का जितना भी टाइम है वो सारा टाइम आप अपनी जो अंडर ग्रेड लॉ डिग्री है उसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते, और ना वो डिग्री इतना डिमांड करती है। तो जितना टाइम आपको आपकी डिग्री में लगता है, उसके अलावा आपके पास बहुत वक्त होता है, उस वक्त को यूटिलाइज करें। इंटर्नशिप्स करें, मैंडेटरी नहीं भी है इंटर्नशिप्स, फिर भी करें। मैं मतलब व्हेन आई वाज इन माय अंडर ग्रेड लॉ डिग्री कोई मैंडेटरी इंटर्नशिप नहीं थी। 2 साल मैंने वैसे ही एक लॉ फर्म में काम किया, और मैंने 2 साल इंटर्न आई मीन 2 साल की इंटर्नशिप दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैंने मतलब आई डिड यू नो आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंटर्न। उसके बाद आप कोई एक्स्ट्रा अगर कोर्सेज कर सकते हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंसेज हैं, सेमिनार्स हैं, आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अपने लेवल पे, कम्युनिटी में कोई अच्छा काम कर सकते हैं। आई मीन जो भी आप कर सकते हैं, बट इट शुड हैव अ सोशल इम्पैक्ट अराउंड यू एंड विद इन योर सर्कल। और ये आपको खुद ही से ड्राइव और मोटिवेशन आती है। आई मीन यू नोबडी कैन बी पुश टू डू दैट। आप खुद ही से जो है वो आप ये करते हैं, और आप यू फील लाइक यू नो डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको मेरा ख्याल है कि करते रहना चाहिए। वेल रिसेंटली मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपने इंटर्नशिप की बात की, आई आल्सो वेरी इंडोर्स दैट कि रिसेंटली जब मैंने इंटर्नशिप की तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई रियलाइज दैट ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग ड्यूरिंग जो स्टडीज जो है वो इसको मिस कर रहे होते हैं। वेल आई हैव टेकन मच इनफ टाइम ऑफ यू, बट लास्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा लाइफ एट यूके का थोड़ा सा हमें दे दें कि हाउ इज योर स्टडी गोइंग ड्यूरिंग एलएलएम, किस तरह का आपका वहाँ पे एक्सपोजर कैसा रहा, एंड how are you like enjoying that time, and how are you utilizing that time? Well, this is interesting question. इस वक्त यूके में नॉट ओनली इन यूके, पूरी दुनिया जो है दैट्स हिट बाय कोविड। तो वो जो एक फैक्टर है कोविड का, वो तो खैर एक कांस्टेंट है, एंड इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल। तो वो जो इम्पैक्ट कोविड की वजह से पूरी दुनिया में आया है, यूके इज नो एक्सेप्शन। तो यहाँ पर भी वो सूरत हाल तो एग्जिस्ट करती है।
लेकिन उसके अलावा पढ़ाई के मामले में बहुत फ़र्क है। The stream of education that we get to experience in Pakistan, उसके मुकाबले में ये बिल्कुल मुख्तलिफ एजुकेशन है। यहाँ पे रिसर्च बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड काम है, और सबसे बड़ी जो बात है, कोई कंपैरेटिव स्टूडेंट का आपस में कंपैरेटिव कोई जो है ना वो इवैल्यूएशन नहीं है। आप जो हैं, जो आपका माइंड है, जो आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं, आपने उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए और अपना काम करते हुए आपने अपनी इवैल्यूएशन करवानी है। उसमें कोई ये नहीं है कि एक कोई रेस नहीं है जिसमें स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। और ये है कि आपको खुद से देखना होता है, चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना होता है। कोई प्रिपेयर्ड मटेरियल या प्रिपेयर्ड लिटरेचर यहाँ पे आपको नहीं होता अवेलेबल। जो भी कोई प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, लीगल प्रोपोजिशन है, उस पे यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, यू हैव टू क्रिएट योर ओन ओपिनियन, जो कि फिर आपको ये सिखाता है कि सिचुएशंस को क्रिटिकली इवैल्यूएट कैसे करते हैं और एनालाइज कैसे करते हैं। तो पढ़ाई के फ्रंट पे तो challenging and it's difficult और intellectually stimulating है बहुत ज़्यादा, which is the fun part of it. Otherwise, it is, I mean, amazing to be in a different culture, in a different country, in a different, with a different lifestyle. It's challenging. It teaches you a lot of new things, and it sort of, reveals your own self to you in a lot of terms. तो ओवरऑल ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाई के और एलएलएम के और स्कॉलरशिप के हवाले से भी, और आपकी जो एक ज़ाती जो जर्नी होती है उस हवाले से भी। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर ज़िंदगी में एक दफ़ा तो आपको कम से कम जो है ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाता है इन अ लॉट ऑफ वर्जन्स। सो यस, दिस इज़ हाउ इट इज़। Chal. Okay, ma'am. Thank you very much. It was great hearing from you, and we will always on from the platform of Games of Law would welcome you to talk on any type of topic. Would you like to raise voice or anything? So thank you very much for your time, and it was nice seeing you. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, Najam. Thank you for organizing this and keep organizing such sessions. And you're doing a commendable job. It was a pleasure talking to you and to the audience. इस तरह से, and have a good day. It's a Thank good you. night. It's time मेरी तरफ दिन है तो. Yeah, it is night here. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. Have a good day. Thank you. Okay. शुक्रिया. Thank you very much.